तो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हियर टुडे वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस क्लास में, मेरे चैनल में जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। और दिस आई हैव रिटन दीज ऑल द टॉपिक्स हियर एंड एज यू नो दैट आई एम गिविंग यू continuously the different parts of a particular chapter. So the name of this chapter is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. So my dear students, this chapter is for class 10, as you all know. This chapter is for class 10, as you know, and it is very important for all of us that how can we understand about these all the topics. So finally I am telling to you one thing, that let us see how can we solve these all the things one by one. You just recall what I have told in the first part. This is actually part second. My dear students, this is part second, and in the first part I have given you the introductory lecture related to magnetic effect of electric current, and finally I will say to you that if you want to see my part 1, so click on the I button, you will get the explanation. So finally now I am going to tell here that magnetic field due to a current carrying conductor. Magnetic field due to a current carrying conductor. Then after we will study about magnetic field due to a current through a straight conductor. This is the second topic. And finally we will discuss here Maxwell's right hand thumb rule. ठीक है प्यारे बच्चों, तो one by one let us see and let us start. So try to understand. एक्चुअली होता क्या है, बातें क्या है टोटल, सो एक बार देख लेते हैं, हम लोग समराइज कर लेते हैं। कौन थे वो? ऑर्स्टेड साहब ने बता दिया था कि भाई अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, इतना उन्होंने कह दिया। और बाद में आम्पियर साहब ने, आंद्रे आम्पियर ने क्या बताया, आम्पियर स्विमिंग रूल दे करके उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। सो लेट अस सी। तो यहाँ तो वो वही बात है, यहाँ पर ये है मेन टॉपिक है, और ये जो है इस टॉपिक का ये सब टॉपिक्स है। तो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ये तो पुरानी बातें हैं यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और यहाँ पर अब आप देखिए कि ये है क्या। तो लेट अस स्टार्ट विथ वन फिगर, वन डायग्राम। सो सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज अ कंडक्टर दैट वी हैव, एंड लेट अस हैव अ सर्किट अराउंड इट। Suppose we have a circuit around it. Clear? Suppose we have a circuit, and what type of circuit it is? So all of you see carefully. Actually what will happen, we have a battery. See, I have taken two cells here, positive, plus minus. So this is a battery, group of cells is called battery. So what happens, the direction of current will, do you know, the direction of conventional current will take place from positive terminal to negative terminal. Direction of conventional current. तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इस तरह से हो जाता है। तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास ये जो कंडक्टर है, इसमें जो होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट चल रहे होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की तरफ आते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट टेक्स प्लेस ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल।
of a cell or a battery. So my dear students, what you will do, you just make a diagram. I am making here a rough diagram for you all. So try to understand what's this diagram is. Actually what happens, try to understand all of you. Suppose we have a hard cardboard. Suppose we have a hard cardboard or hard chart paper and I have pierced. हमने इस रॉड को इसमें ऐसे धंसा दिया इस कार्डबोर्ड में और उसके बाद इस तरह का एक सर्किट हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। और देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं कि वी स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर ऑन दिस चार्ट पेपर, माय डियर स्टूडेंट्स. And suppose here it is the circuit break, suppose here it is the key, and my dear students, as you can understand that this is the key, and as soon as right now this circuit is incomplete, this is opened circuit still, but as soon as you close this switch the circuit will complete, and finally what will happen, the current will start flowing from positive to negative terminal. And as we all know that what happens, these all the iron fillings will align itself. ये सभी iron fillings खुद को align कर लेंगे, ठीक है ना, एक concentric circles के रूप में align कर लेंगे my dear students. तो यहाँ पर जो iron fillings है वो क्या होगा, सो मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से ज़रा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोल रहा हूँ मैं. So my dear students, try to understand. I have made the diagram here, and try to understand what will happen and how these all the iron fillings, those iron fillings was spreaded throughout on the chart paper. Actually I am telling to all of you. तो ये सभी आयरन फिलिंग्स जो बिखरे पड़े हुए थे इस चार्ट पेपर पर, वो इस तरह के कंसेंट्रिक सर्किल्स में खुद को ढाल लेता है, खुद को अलाइन कर लेता है. तो इसमें क्या है बच्चों कि अब बातें ये उठती है कि देखा जा रहा है कि दीज ऑल द आयरन फिलिंग्स आर अलाइंड इटसेल्फ इन दीज ऑल द कंसेंट्रिक सर्किल्स. अब यहाँ पर ये जैसे सेंटर है, आप यहाँ पर सेंटर देख सकते हो, ये सेंटर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, ये सेंटर्स है. तो सेंटर जो है हमारे पास, ये रहा सेंटर, आप देख लो इसको, यहाँ पर ये सेंटर है कंसेंट्रिक सर्किल्स का बच्चों, और ये बहुत सारे सर्किल्स यहाँ पर बनेंगे. धीरे धीरे क्या होते हैं कि जैसे जैसे सर्किल्स आगे बढ़ेंगे वो सर्किल्स कंप्लीट होना बंद हो जाएगा. तो समझिए कि ऐसा होता क्यों है. देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे हम लोग इस रॉड से आगे चलते जाते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो घटता चला जाता है बच्चों, ठीक है ना. और ऐसे भी हम लोगों को पता है, आपको और हम लोगों को सभी को पता है कि ये क्या होता है, ये होता है इस तरह से, है ना. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एक्चुअली होगा क्या कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये छोटा होता चला जाएगा. और देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता जा रहा है, ये रेडियस जो है बड़ा होता चला जा रहा है. तो ये जब बड़ा होता चला जाएगा तो ये घटता चला जाएगा, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, एंड दैट्स वाई द फाइनली द सर्किल्स विल नॉट कंप्लीट आफ्टर सम टाइम्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि वो सर्कुलर फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में आयरन फिलिंग्स खुद को अलाइन कर लेता है, और वही है मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली, ठीक है ना बच्चों. किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. एक करेंट के वजह से स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न है बच्चों, ठीक है. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके अमाउंट ऑफ करेंट पर भी डिपेंड करेगा. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके अमाउंट ऑफ करेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना. ठीक है, तो क्या होगा, अब हम लोगों को ये जानना चाहिए
कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बन रहा है कंसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में, इसका डायरेक्शन क्या है। वेदर दिस ऑल द आयरन फिलिंग्स अलाइंड इटसेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज द मैटर। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दिस इज द मैटर। यही मुद्दा की बात है, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके लिए मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इन्होंने इससे रिलेटेड इन्होंने लॉ को बना दिया। और लॉ को उन्होंने बना दिया कि भाई हम लोग जो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को लगा करके क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। पता है ना क्या निकाल सकते हैं, हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। देखो अभी क्या है बच्चों, जैसे ही आप इसको सर्किट को क्लोज करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, करंट तो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर करंट चलने लगेगा इस सर्किट में। और यहाँ पर क्या होगा, सो देख लो बच्चों, यहाँ पर जो होगा प्यारे बच्चों, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, देख लो ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, ये जो थंब है, राइट हैंड का थंब आप लगा दोगे इधर, ठीक है, ऊपर की ओर लगा दोगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है उस डायरेक्शन में आप थंब को लगा दीजिए। और उसके बाद ये रहा थंब का डायरेक्शन, ठीक है। और जिधर ये फिंगर आपका कर्ल हो रहा है, जिस तरफ ये फिंगर आपका कर्ल हो रहा है, मुड़ रहा है ना, ये सारी उंगलियां जिधर मुड़ रही है, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्लियर है बच्चों, समझते हैं इसको। तो देखो अब क्या है, ये रहा हमारा थंब ऊपर। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों का जो ये जो राइट हैंड का जो बाकी जो फिंगर्स है, ये थंब के अलावा ये जो बाकी जो 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स जो हमारे पास, 4 उंगलियां, वो क्या मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है बच्चों, ये देखो, ठीक है ना। तो आप ज़रा सा इसको समझो कि इसको हम लोग जो है डायरेक्शन जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, सो समझ लेते हैं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ये आप देख लो ऐसे लगा करके, थंब को आप ऊपर ऐसे लगा दीजिए, डायरेक्शन के करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लगा दो, और फिर ये जो 4 फिंगर्स इधर मुड़ जाते हैं, वही होगा सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बच्चों। ठीक है ना, अच्छी बात है, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझा। अच्छा, मान लेते हैं कि हम इसके पोलरिटी को चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि अभी जो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, निगेटिव यहाँ है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, सो समझ लेते हैं बच्चों। तो ऐसा है बच्चों कि आप देखो, जैसे ही इसका पोलरिटी को चेंज करोगे, पॉजिटिव अभी ऐसे हम लोगों ने देखा, अब आप इस बैटरी को ऐसे रिवर्स कर दो। ठीक है ना, ये पॉजिटिव अब उधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर चला आएगा बच्चों। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बच्चों, इसमें रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा बच्चों, मैं इसी फिगर में समझा देता हूँ आपको, आप समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना। तो अब क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे रिवर्स कर देते हो, तो फिर ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चों, वो क्या होगा, अभी जो अपवर्ड है वो हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोगों का ये जो थंब है, हम लोगों को नीचे लगाना होगा, ऐसे यहाँ पर नीचे की ओर लगाना होगा थंब को। थंब जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रहेगा। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। सो थंब आप नीचे की ओर लगा देना, तो अब देखोगे कि ये जो कर्ल हो रही है, ये सारी उंगलियां, ये जो फिंगर जो मुड़ रही हैं आपकी, वो क्या हो रहा है बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब वो मुड़ जाएगा। ठीक है, पहले जब ऐसे था तो ये ऐसे मुड़ रहा था, देख लो ऐसे मुड़ रहा था, अब नीचे है तो ये ऐसे मुड़ रहा है। तो क्या होगा बच्चों, अभी जो ये ऐसे चल रहा था, ये जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चल रहा था, वो अब क्या हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा इस टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को हम लोग जो है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल के
मेथड से भी समझ सकते हैं। वो रूल मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल आप अप्लाई करिए या मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, रिजल्ट आपको सेम आने हैं। आप मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल एक बार आप पढ़ लेंगे अपने किताब में, आपको बहुत अच्छा से वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। और फिर आप जो है इस सभी टॉपिक्स को समझते जाएंगे और मैं आपको ऐसे ही एक एक करके टॉपिक जो है डिस्कस करता चला जाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक तो बात हुई कि भाई जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू घटता चला जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो है वैल्यू घटता चला जाएगा और धीरे धीरे वो जो सर्किल्स जो पूरे हो रहे हैं वो पूरा होना बंद हो जाएगा। और वैसे ही फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है माय डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पर, कि आप कितना करंट उसमें दे रहे हो। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोर करंट तो मोर आई विल टेल टू यू मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेस करंट लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ यू कीप वाचिंग माय वीडियो और आई विश that in the forthcoming examination you must get the best marks, become a ranker. Thank you all of you.